अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर शो 20 मिनट्स टू लीड। मेरा नाम ज़ारा है। हम आपके लिए लेकर आए हैं रॉ रियल रेलेवेंट कन्वर्सेशंस विद पाकिस्तान्स मोस्ट अकम्प्लिश्ड सीईओज, डायरेक्टर्स, फाउंडर्स, लीडर्स जिन्होंने अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदला, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदला। वी आर ट्रूली ऑनर्ड टू हैव मिस्टर शबी अहमद विद अस। हम आज उनकी ज़िंदगी की journey discuss करेंगे, the highs and lows he has gone through, his journey from academia to corporate leadership, managing different brands from running his own successful business. Now he is currently chairman and CEO of New Next Distributors, also the chairman of Tech Glide USA, and the president of CEO's Club Pakistan, the Karachi chapter. Okay, thank you very much for inviting me. My Likewise. journey started down under, which is Australia. I studied in IBA here, and then I was a lot of mischief around in my life. So I was forced to go to Australia to study, and that is, I think, one of my turning points of my life. वहाँ जाके then I became more studious. I had to prove myself not only amongst the Pakistani community but to a global community. So I became very serious in my life. Normally people वहाँ जाके बिगड़ जाते हैं बाहर जाके, मैं जाके सुधर गया. So I really plunged into academia full time. I was given an admission into Masters in Management program, or because MBA की prerequisite was some working experience which I didn't have much at that time. तो वहाँ जाके मैंने बड़ा अपना केस फाइट किया, and luckily I was given the choice to do my MBA, and it was a 2-year MBA program. And being not a very good student, I finished it off in 1.5 years because I took summer courses and everything. So I think that is one thing that I did very well. So that's how I started my career. And I became my blue-eyed boys to my professors. Nice. तो उन्होंने कहा कि यार तुम वापस क्यों जाते हो? We want somebody to teach here. And I said, yeah, this is going to be difficult for me because I never thought of doing that before. But somehow luck took me there. So I started my career in academia actually. So graduating from the University of Wollongong, Australia, down under, I became a visiting teaching fellow. And at that time, it was difficult for a foreign national to teach because then you had to prove that you don't have somebody in Australia with that particular set of skills. So they drafted the letter in a way that suited me best. So I was lucky enough and I became the part of the faculty. And I think that is where I learned. आप पढ़ाने से बहुत कुछ सीखते हैं. And once you teach, you develop a characteristic in yourself, which is about nurturing others. And then you would want people who are under you, in this case your students, to excel more than yourself. So I think ये trait जो है ना, ये सिर्फ academia में learn होती है. So I think that is one of the strengths that I still carry myself today in my pocket. So that's how I started my career in academia down under. तो ये मेरा starting of the journey थी. सर आपके चाइल्डहुड ड्रीम्स क्या थे? लाइक एज अ चाइल्ड यू मस्ट हैव थॉट कि आप ये करेंगे और दिस इज योर ड्रीम. देखें चाइल्डहुड ड्रीम्स तो हर एक के होते हैं. ऑल दोस फैंसी थिंग्स एंड माइन वर नो डिफरेंट. आई वांटेड टू बिकम अ पायलट, फ्लाई द प्लेन, see the world. Then I wanted to join the army. Then I studied in a cadet college, so I wanted to join the army. And because I thought that men look good in uniform only. So एक वो भी पैशन था. फिर था कि यार मैं जहाज़ उड़ाऊँ, दुनिया घूमूँ. फिर था मैं कॉर्पोरेट लाइफ में भी चला जाऊँ. फिर था कि मैं जो बिजनेसमैन ही बन जाऊँ. You wanted to like jack of all trades. That is how you start your early days in your life. So I think it's good because then you keep your options open. You have to explore avenues in your life. So like any kid who's not mature enough, I was no different to them. And I had those fantasies in my mind. Sir, while growing up, आप किससे ज़्यादा influenced थे? Like who was someone जिसको आप look up करते थे? वो कौन थे? देखिए I don't think it's a problem in myself, but I see that as a positive point that I don't get impressed with people. मुझे जो लोग इंस्पायर करते हैं वो लोग those who become something with very limited resources. Those are the people that inspire me. So इस तरह के हज़ारों लोग हैं जो मैं इंस्पिरेशन देते हैं. Not कि वो जो बड़ा आदमी है because he has wealth and he is successful. There are many other definitions of success that I'm sure you'll have questions for me later on that subject. So all those people who start on their own with very limited resources are all the people that I'm inspired with. Sir, आपकी academia in Australia के बाद what makes you think like why did you decide to come back to Pakistan?
देखें जी, आई गॉट माई सेल्फ, दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ लाइटर साइड. I got myself admitted into a PhD program in Australia because I was very good academically. And PhD के लिए आपको पता है, there are certain topics जो आप चूज़ करते हैं, उसके लिए आपका इक्विवेलेंट सुपरवाइज़र भी होना चाहिए. तो मेरा सारा हो गया था. So went back to Pakistan for a little break, for a year's break. But then I got into a very fine company which was Pakistan Tobacco, British American Tobacco subsidiary in Pakistan. So I started there and I started to enjoy that also. And in the meantime, my professor who was supposed to supervise my PhD left the university and went to Hong Kong, which means I had to find a new topic, a new university. तो फिर वो slip out कर गया at that point in time. Sometimes fate takes you where you have not planned. So Pakistan Tobacco, I started rising up pretty quickly. So I started to enjoy and I had that kick in me. So that's how I came back to Pakistan and then moved on within Pakistan into some various roles. तो ऐसी कौन सी चीज़ जो अगर आप आज से इफ़ यू लुक यंगर सेल्फ लाइक 25 इयर्स यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि आपने ये किया होता तो अच्छा होता और ये ना किया होता तो अच्छा होता. डू यू हैव एनी रिग्रेट्स इन योर लाइफ? लेकिन जी अगेन मेरे अपने एक सेट ऑफ ट्रेट्स हैं कि आई नॉर्मली ट्राई टू कीप कटिंग माई पास्ट. मैं ज़्यादा बैक व्यू मिरर में नहीं देखता, बट आई एम ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे. इफ आई regret slightly, one thing is to have started my own brands much earlier. ओके, My own brands much earlier. सही. आपकी ज़िंदगी में बिगेस्ट ऑब्स्टिकल क्या था? ओके, देखिए ऑब्स्टिकल्स आदमी की ज़िंदगी में आते हैं. मैं बिजनेस ऑब्स्टिकल्स की बात करूँगा. जब आप अपना ब्रांड शुरू करते हैं तो आई थिंक द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल दैट एनीबडी वुड फेस, एंड आई एम नो डिफरेंट टू दैट, इज कंस्ट्रेंट ऑन योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज. दैट कम्स फर्स्ट. lot of people try to choose debts and equity enhancement by inviting new partners. तो वो आपका ईज हो जाता है. हमने वो रूट नहीं लिया, हमने बूट अप स्ट्रैटेजी रखी. क्या जो है छोटा मोटा वी स्टार्ट ऑन अवर ओन. सो आई थिंक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इज स्टिल चैलेंज बिकॉज वी डोंट डू बैंकिंग टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. सही. सर, हाउ डू यू डील विद योर फेलियर्स? देखिए, फेलियर हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, एंड दिस इज़ प्रोसेस. नोबडी बिकम सक्सेसफुल in a very even way. There are roads which has twists and turns, and mine was again similar. I think जब आपके बिजनेस में ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो what you really need to do is to reflect, take a pause. I think the message is take a pause. Reflect on what you've done and what you could have done better. So when you have an obstacle of a failure, so the way we handle it is to take a step back, 3 steps back, 4 steps back, pause, rethink hard, and then learn, unlearn, and relearn new things of doing things. So that's how you address your failures or shortcomings in your life. सर, along the way आपके sacrifices क्या थे जो आपको लगता है कि you sacrificed this to become the person you are today? देखिए, मैंने आपको बताया था जब आपने एकेडमिया में स्टार्ट किया होता है ना अपना करियर, तो आपके अंदर एक नर्चरिंग हैबिट आ जाती है. सो व्हेन द टफ गेट्स गोइंग यू हैव टू सैक्रिफाइस. और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता दूं, आई एम द लास्ट पर्सन टू ड्रॉ अ सैलरी इन द बिजनेस. और जब कभी थोड़ा बहुत बुरा वक्त आता है, चैलेंजेस ज़्यादा आ जाते हैं, सो आई फॉरगो माई सैलरीज फॉर फ्यू मंथ्स. सो दैट्स अ सैक्रिफाइस दैट आई टेक so that the people who work for me remains motivated. They are more encouraged. They work much more harder because they know that the boss is not making money and we are making money. So I get the reward back in a short time back. Sir, have you ever felt like giving up? आप fed up हो चुके हैं, you feel like screw everything? नहीं. नहीं, I do never give up. Sometimes you reflect कि यार मैं इसको इस तरह कर लेता तो बेहतर होता. बट गिव अप का कोई तुक नहीं है. हाँ, अगर ये वाला रास्ता मेरे लिए ठीक नहीं है तो मैं दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू कर देता हूँ. तो गिव अप का कोई सीन नहीं है ज़िंदगी में. जब तक लाइफ है, यू हैव टू कीप स्ट्रगलिंग फॉर एवरी ब्रेथ दैट यू ब्रीथ इन. सर, हाउ डू यू डील विद क्रिटिसिज्म? लाइक होता है ना कि ये कुछ नहीं कर सकेगा, ये पता नहीं क्या करेगा, इसका कुछ बनेगा नहीं बनेगा, फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एट टाइम्स पेरेंट्स. देखें जी, जो मुझे क्रिटिसाइज नहीं करता ना, आई से ही इज़ नॉट माई फ्रेंड. सीरियसली, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल इन द कॉर्पोरेट हाई अप्स हु फेल
because a lot of people and they actually slip off the cliff. वो आगे खाई है, लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा भाग रहे हैं सर, और तेज़ भागें और तेज़ भागें, तो बेचारे खाई के अंदर गिर जाते हैं. And I've seen it with my own eyes, people failing because of others supporting them when they should have asked them to stop. So I really love people who say यार ये तुम गलत कर रहे हो. I always tell my people in the sales, यार come grab my neck and says यार ये काम तुमने करना था बॉस, तुमने क्यों नहीं किया, and I'll be happy with that. और जहाँ तक क्रिटिसाइज लोगों करने का है, देखें when you are in a stadium watching a cricket game, the noise is created by the audience, not by the players. They keep playing. आप अपनी बॉलिंग करते रहें, अपनी अच्छी बैटिंग करते रहें, लोगों को शोर करने दें. डोंट वरी अबाउट दैट. सर ऐसा कब था कि द फर्स्ट टाइम यू फेल्ट लाइक आपने ये अचीव कर लिया है, लाइक आप अपनी ज़िंदगी की कुछ किस स्टेज पे थे, लाइक विच ईयर? देखें, माय फर्स्ट अचीवमेंट अगर मैं अपनी बोलूँ ज़िंदगी में, जब मैं पढ़ा रहा था यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने एक मार्केटिंग की किताब है फिलिप कॉटलर विच इज़ सपोज टू बी द गॉड ऑफ मार्केटिंग, तो उनकी एक किताब में मेरा केस स्टडी छपा था ऑस्ट्रेलियन एडिशन में. सो आई थिंक दैट्स आई मेड इट इन एकेडेमिया, बिकॉज देखें जब आप एकेडेमिया में होते हैं तो आप सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, आप रिसर्च भी करते हैं, पब्लिकेशन भी करते हैं. तो मेरा बहुत क्विक हो गया था ये. तो आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट सक्सेस. एंड देन व्हेन आई मेड इट टू व्हेन आई वर्क फॉर जॉनसन एंड जॉनसन फॉर 17 years, व्हेन आई मेड इट टू द कंट्री हेड, मुझे लग रहा था यार मैंने काम कर लिया ज़िंदगी में. फिर अपना गोल पोस्ट आप खुद आगे ले जाते हैं ज़िंदगी में. ये अचीवमेंट थी मेरी, मैंने सोचा यहाँ तक पहुँचने में पहुँच गया, अब वहाँ पहुँच गया, अब क्या करूँ, तो मैंने गोल पोस्ट आगे कर दिया कि यार अब अपना बिज़नेस शुरू करना है. फिर अपना बिज़नेस शुरू किया, थोड़ा बहुत चला, फिर मैंने कहा यार अपना ब्रांड बनाना चाहिए. सो आई थिंक दिस इज़ वेयर आई एम एट दिस मोमेंट. सो आई थिंक दिस इज़ नेवर इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी. सो व्हेन डिड यू रियलाइज कि यू हैव चोजन द राइट पाथ या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? देखें, कोई डायरेक्शन आप लेते हैं ना ज़िंदगी में, अपने चॉइसेस, दीज आर द चॉइसेस दैट यू मेक, उसमें कुछ गलत होती हैं, कुछ सही होती हैं. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू इनर्शिया, या आप उसको ओवर एनालाइज करते रहें और आप मूव ऑन ना करें, तो वो गलती होती है. तो आप करते रहें, उसमें 4 गलत होंगे, 2 सही होंगे. दैट्स हाउ यू मूव इन लाइफ. सर कोई ऐसा सिंगल मोमेंट जहाँ पे आपको लगा हो कि सब अच्छा जा रहा है बट कुछ चेंज होना चाहिए इसके अंदर, लाइक व्हेन यू फील लाइक यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द थिंग यू आर डूइंग एट द मोमेंट? लेकिन जी, मैं एक ज़िंदगी में मेरी फ़िलासफ़ी है, वॉट एवर इज़ वैलिड टुडे विल नॉट बी वैलिड टुमारो. सो मैं अपने आप को चैलेंज करता रहता हूँ अपनी टीम के साथ, यार कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कुछ इसको डिफरेंट तरीके से करते हैं. बिकॉज व्हाट वी डूइंग टुडे मे नॉट बी लाइक, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बिजनेस जैसे आपका आ गया, ई कॉमर्स आ गई, आज से 20 साल पहले इसका ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. सो वी हैव टू कीप into a change mode or innovative mode in our lives. Sir, you have been called a man of principles. What are the important values, ethics in the business आज की दुनिया में? I think character and strategy, दो बड़े important traits होते हैं for a leader to pursue. So if you have to choose one, I would say let go of strategy. So character I think is very important. आपका moral compass जो है, that is extremely important. आपने अगला बात मुझसे करेंगे, जेन जी और जेन एक्स वाले जो बातें करेंगी, उसमें people float around without a sense of purpose. They need to anchor themselves into something solid, and that something solid is the character. सही. सर what makes you think कि एक great leader की क्या qualities होनी चाहिए? देखें, लीडरशिप की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं. लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट हैविंग अ ग्रेट विजन, सेंस ऑफ पर्पस, एबिलिटी टू लीड. I personally think leadership is all about showing up in times where most people would duck down. To give an example, there was a multinational company in the US in the 1980s, and I won't take the name, and some people died of using that drug. So instead of hiding and making up a story, that leader stood up on the national television and said, stop taking this particular medicine, this has happened. And a lot of people advised him not to do so. The shares plummeted. But then people realized that that was the right thing to do. And then the company regained big time success, rebounded. So I think that is one great example of leadership that I can talk about. सर आप क्या एडवाइस देंगे टू यंग पीपल, टू यूथ जो कि कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं
business में or any other field, what advice would you give it them? देखिए जी, I come from the old school of thought and to me you need to burn your midnight oil. जब तक आप वो अपने आप को मेहनत से रगड़ेंगे नहीं और पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, तो ये तो पहला रूल है. आई थिंक इट्स बेसिक एंड वेरी जेनरिक. एंड देन फाइंड अ पर्पस विद इन योर सेल्फ. एंड to do that, you need to really, really believe in yourself. So that's my message. Believe in yourself. Believe in the opportunity that you are looking for. And above all, please believe in the nation Pakistan, because this country has given you everything. So अपने आप का believe, अपने opportunities and potentials का believe, and the belief in your country. And keep burning the midnight oil. So this is a simple message from me. Sir, how do you handle competition? Oh, I love competition. देखिए, सबसे बेहतरीन आइडियाज़ आपको आपके कॉम्पिटिशन्स और आपके कस्टमर्स देते हैं. लॉट ऑफ पीपल थिंक कि आज जब मैं अपना ब्रांड लेकर आया मैं सारों को ख़त्म कर दूंगा, एंड दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू. देयर आर फाइन ब्रांड्स एंड व्हाट यू नीड टू डू इज़ लर्न फ्रॉम दोज ब्रांड्स. और आपको ये सोचना चाहिए कि क्रिकेट का मैच है या हॉकी का मैच है तो सब लोग खेलने आए हुए हैं, तो आप अकेले नहीं खेल रहे हैं. सो लर्न फ्रॉम योर कॉम्पिटिशन. सर, अगर आप अपने 20 साल के थे जब आप अपने आप को आपको एडवाइस देना चाहें या अपने आप को बताना चाहें ये ब्लंडर नहीं मारना, वो क्या होगी एडवाइस? लेकिन जी, हम सब अपनी अपनी गलतियां करते हैं एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. सो आप गलतियां करें, आप 4 करें, 6 करें, करते रहें और उसी से आप सीखते हैं. सम पीपल लर्न इट द हार्ड वे, सम पीपल लर्न एंड बाउंस बैक क्विकली. सो इफ़ यू आर यंग, कीप डूइंग योर मिस्टेक्स एंड जस्ट कीप लर्निंग. डोंट वरी अबाउट द मिस्टेक्स. सर, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टू बिलीव इन योर सेल्फ? ओ जी, वो मैंने आपको बताया ना जी, बिलीव इन योर सेल्फ इज़ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग. कोई एक हिस्ट्री में कोई जनरल था, उसने कहा कि मैं बहुत जल्दी जनरल बन गया हूँ, अब मैं क्या करूँ. ये कोई पुरानी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो उसकी बीवी ने कहा जस्ट थिंक लाइक अ जनरल, एक्ट लाइक अ जनरल, वॉक लाइक अ जनरल, ईट लाइक अ जनरल एंड बिकम अ जनरल. सो आई थिंक बिलीविंग इन योर सेल्फ इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनी रूट इन योर लाइफ. Have you ever felt stuck? Stuck means Like you felt like कि मैं फंस गया हूँ और you have no clue what to do. देखिए, बिल्कुल ऐसा वक्त आया था जब मैं एक कॉर्पोरेट में काम कर रहा था और कुछ अरसे तक मैं बिल्कुल स्टैग्नेंट था और सब लोग मुझे कहते थे यार तुम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, तुम्हें कुछ और कर लेना चाहिए. बट somehow I did believe inside. एंड बाज़ दफ़ा आप जब स्टक होते हैं ना, तो द मैसेज इज़ दैट कीप डूइंग योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू द फेट. अब अल्लाह पे छोड़ दें कुछ चीज़ें. एंड देन आई गॉट माई रिवॉर्ड इन अ जम्प्ड अप वे. सो हो जाती चीज़ें सही. सर, आप इस जनरेशन को कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, द न्यू यूथ? We keep running about money. We value success directly with money. This is of course the new generation. वो कहते हैं मैं आज ही सारा कुछ कर लूँ, सारी देग आज ही बना के खा लूँ. You have to work hard on that. And you have quick to wait money, for quick fix. देखिए, आप जो किसी इदारे में काम कर रहे हो या अपना काम कर रहे हो, उसके साथ ज़रा दिल से काम करें, विद सम पैशन काम करें. आपके रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे. हम फेट को भूल जाते हैं, हम कुदरत को भूल जाते हैं. हम समझते हैं कि हम सब कुछ कर लेते हैं और जल्दी कर लेंगे. ऐसा नहीं होता. सर, कोई ऐसी बुक या ऐसी रिसोर्स जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी बिल्कुल ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, लाइक द वे यू थिंक हैज़ चेंज? देखिए, बुक्स भी हैं, इसमें लोग भी हैं, इन्वायरमेंट भी है. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाती हैं. इफ़ आई हैव टू mention one particular book, I really liked reading, which I've read quite a few times, is a book called In Search of Excellence by Tom Peters. उसमें 8 attributes दिए हुए हैं to being an excellent company. So that has really helped shape a lot of my thinking for running businesses. जैसे मैं कोई एग्जांपल दूँ, उसमें एक एट्रीब्यूट था प्रोडक्टिविटी थ्रू पीपल. उसमें किताब में है, क्योंकि मैं फिर नाम ले सकता हूँ. उसमें लिखा हुआ था वाई वुड एक्स ब्रांड गाड़ी का वर्कर ऑन हिज वे बैक होम वुड स्ट्रेटन ऑल द विंडस्क्रीन वाइपर ऑफ एनी एक्स ब्रांड दैट ही पासिस बाय. उसमें लिखा था ही वाज सो पैशनेट ही कुड नॉट स्टैंड टू सी अ सिंगल फ्लॉ ऑन दैट एक्स ब्रांड कार. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट.
Sir, how do you balance your work life and your personal life? Because from academic to corporate leader, from managing global brands, running your own business, how do you manage your personal life and your I work just life? answer you very simply. It's a very philosophical question. I think marry all of them. So, sir, what's next for you now? Create more brands, create new brands, create more jobs for Pakistan and for the business, and that's what's next for me. सर आपका लास्ट मैसेज क्या होगा फॉर पाकिस्तान? देखें जी, we have to contribute our share in the development of this beloved country. एंड उसमें सबको मैं कहता हूँ जी मैं तो उस पोजीशन में नहीं हूँ, मैं कोई मिनिस्टर तो नहीं हूँ, मैं कंट्रीब्यूट कैसे करूँ. तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा, जस्ट बॉयल योर ओन कप ऑफ टी, डोंट बॉदर ऑफ बॉइलिंग द ओशन. तो आप जो अपना काम कर रहे हैं अच्छे से कर लें, और उसमें जो गवर्नमेंट का शेयर बनता है टैक्सेस का वो दे दें. सो आई थिंक यू हैव प्लेड योर शेयर. और अपने मुल्क का जहाँ भी जाए मुल्क से बाहर, एंड यू पोज योर सेल्फ एज द बेस्ट एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्री. तो ये मैं उनको मैसेज दूंगा. Sir, I would like to, I would want you to give a message to young entrepreneurs, summarizing up your life. कि आप अगर एक मैसेज देना चाहें young entrepreneurs को, those who are still struggling, वो क्या होगा? देखें, दोज आर स्ट्रगलिंग, मैं उनको ये बोलूँगा कि डोंट गो अलोन इन बिजनेस, फाइंड लाइक माइंडेड पीपल एंड पार्टनर विद देम. तो आपका रिस्क एक दूसरे तीसरे के नसीब से आ जाता है. ये मैं बोलूँगा उनको, अकेले जर्नी ना करें, साथ ले लोगों को, कम विद मी एंड टुगेदर लेट्स कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. Thank you so much. आपके टाइम सर, lovely having you. प्लेजर जी, प्लेजर, थैंक यू.